as like any programming language, in C++ also there are various way to implement function, okay, on the basis of argument and return value. तो various ways of implementing user defined function जो है उसमें क्या बोलिए now whenever there is no argument and no return value, no argument means जब भी argument नहीं होगा then there is no concept of actual and formal argument. That means कि the concept of actual आवाज हो रहा है क्या जी? नो सर, सही है आवाज। एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग अभी देखे इसके पहले वाले क्लास में। आर्गुमेंट या पैरामीटर और फॉर्मल आर्गुमेंट और पैरामीटर तो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपका कोई भी आर्गुमेंट आप प्लेस करते हैं या पैरामीटर आप जो है एज एन पैरामीटर आप कोई आर्गुमेंट पास करते हैं अगर फंक्शन में, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। देन out of 4 representation on the basis of argument and return type we have 4 way to represent the particular function. Out of 4 only in case of C and D, in third and fourth cases there is a concept of actual and formal argument. In first two cases there is no concept of actual and formal argument because we are not going to pass any argument or parameter to the particular function. So whenever we are not giving any argument or parameter, so there is no concept of actual and formal argument. Right now जैसे आपका लास्ट क्लास में विनायक ने एक प्रॉब्लम गोलैंग में किया था, तो in that particular function there is no argument. Because there is no argument, so no need to think about that argument, यानी कि actual और formal argument के बारे में हमको नहीं देखना था. That's why we are not passing any value to the main function. ठीक है, मेन फंक्शन से हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हमको एरे या कोई भी पर्टिकुलर, तो ये नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू को आप बोल सकते हैं दिस इज द जीरो लेवल जो है फंक्शन हैंडलिंग. तो इफ यू हैव अ लॉजिक, if you have a logic to write up the program, then you can implement that logic inside the particular function. तो function के अंदर उसको अगर आप embed कर देंगे, then that becomes the function for your program. तो and that sort of function is called by its name. उस तरह का function जो है by name call होगा, in which there is no argument and no return value. क्योंकि return value भी नहीं है, so once the cursor move to the particular function, then the entire result will be displayed or completed through that function only. Cursor, there is no provision to return back cursor to the main program. Main में आपको उसको return करने का कोई provision आप नहीं देते हैं, क्योंकि आपका return statement वहाँ use नहीं हो रहा है. तो whenever there is no return value and there is no argument, argument जब आपका नहीं है, तो there is no need to take any actual argument or send any actual argument through the main function. तो main function के through कोई argument आपको भेजने का जरूरत नहीं है. That means declaration of variable, process execution and finalization of the result, everything is completed under function. Function के अंदर ही ये सारा काम होगा. But whenever there is a concept of no argument but return value, no argument, that means you are not going to pass any actual argument through the main function, but the outcome is returned back from the particular function. So to retain that outcome you need to store that return value in the main program. तो first case में क्या है कि outcome is यानी कि outcome is generated on the basis of the user defined function, यानी जो यूजर डिफाइंड फंक्शन में स्टेटमेंट होगा वहीं से आउटकम जनरेट होगा. दूसरे वाले केस में है आउटकम इज जनरेटेड इन द मेन फंक्शन बिकॉज सम वैल्यू इज रिटर्न फ्रॉम द पर्टिकुलर फंक्शन. फंक्शन से आपका कुछ वैल्यू रिटर्न हो रहा है और वो रिटर्निंग वैल्यू आपका आउटकम है, दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस. तो वो रिजल्ट को रखने के लिए मेन में आपको एलोकेशन देना होगा. तीसरा केस है कि आर्गुमेंट आप भेज रहे हैं
तो आर्गुमेंट भेज रहे हैं तो डिक्लेरेशन एरिया आपका मेन में रखना होगा और डिक्लेरेशन एरिया के साथ साथ उसको पास करना होगा फंक्शन में, लेकिन आपका कर्सर फिर फंक्शन से रिटर्न नहीं हो रहा है क्योंकि रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो रिजल्ट इज ऑल्सो डिस्प्लेड विद इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन. And the last one is the case in which the argument is there and return value is there. That means you are passing argument to the function as an actual argument through the main function, and the argument is copied or address will be collected. It depends the method through which you are calling the particular function. And at the same time, after completion of the job, some value is returned from that function. तो वहां से जो value return होगा, that means आपका जो दूसरा है यानी कि तीसरा और पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें से दूसरा जो पर्टिकुलर वैल्यू है और चौथा जो पर्टिकुलर है, इस दोनों ही केस में आपका आउटकम जो है वो मेन फंक्शन में जनरेट होगा. यानी कि बी और डी के केस में आउटकम इज जनरेटेड इन द मेन फंक्शन बिकॉज सम वैल्यू इज रिटर्न थ्रू द यूजर डिफाइंड फंक्शन. एंड इन केस ऑफ ए एंड सी, your outcome is generated in the user defined function itself. So you have to take care whenever you are going to implement. These are the 4 ways to implement any user defined function. In C++ also you can implement function in 4 manner. तो इसमें से चारों में से कोई भी तरीका का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है ना. अब दो बार कहें, दो बार कॉपी हो गया क्या? सेम चीज शायद हो गया सर. दो बार कॉपी हो गया. यस सर. तो सबसे पहला नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू. नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू. अब यहाँ पर अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम, सर लिखने के लिए दीजिए ना, हम लोग लिखे. बोलिए. सर बोला लिखने के लिए कोई दे दीजिए, हम लोग लिखते हैं अभी. लिखिएगा. यस सर. ठीक है, लिखिए. देखिए, एक ही प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे. वी जस्ट यूज 4 डिफरेंट वे टू इम्प्लीमेंट द सेम प्रोग्राम. ठीक है, एक ही प्रोग्राम को जो 4 तरीका से यूज कर लेंगे. ठीक है ना. अभी हम लोग जनरली कॉल बाय वैल्यू यूज करेंगे, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू. कोई भी सिंपल प्रोग्राम लीजिए, लिखा हुआ है. थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दो. एडिटर ऑप्शन. इसका कोई शॉर्टकट भी होता है. इसका शॉर्टकट क्या होता है, कोई को पता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज कंट्रोल प्लस स्क्रॉल. यस सर. सर किस चीज का प्रोग्राम लिखे सर? प्रोटोटाइप आप पहले दीजिए. 4 पैरामीटर लीजिए, 4 प्रोटोटाइप के सिंपल बनाइए. कोई सिंपल प्रोग्राम, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं. हमको केवल पैरामीटर पासिंग को देखना है और कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है. तो आप तो सर फैक्टोरियल निकालने का बना लेते हैं. ठीक है, फैक्टोरियल का बनाइए. सर एक इंटीजर ले लिया एज अ पैरामीटर और यहाँ प्रोटोटाइपिंग ही दे रहे हैं सर, तो यहाँ पे इंट टाइप का वैल्यू वो रिटर्न भी करेगा. वहां पर कमेंट लिखते जाओ. ओके सर. वहां पर क्या कर रहे हो लिखते जाओ. प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन विदाउट डिफिनेशन. एंड यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं आप, आपको सबको पता है
यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करेंगे। यस सर। नाउ एक आपने डायरेक्ट ही ले लिया रिटर्न और दोनों, पहला नीचे से शुरू कर दिया, ठीक है। रिटर्न यानी कि फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, ओके। देन फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, वॉइड ले सकते हैं। वॉइड काम करेगा, करेगा। सर इसको इवन ऑड का बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। ये चुका ये आप जो है ये आदत नहीं है किसी का, इसलिए इसका आदत डालना जरूरी है। आप जब भी प्रोग्राम लिखते हैं ना तो ये कमेंट लिखना आदत डालिए। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं विदाउट एनी कमेंट। तो जब लंबा प्रोग्राम लिखेंगे तो उस केस में आपको ही अपना प्रोग्राम समझना पड़ेगा कुछ देर, ऐसे वो कमेंट से समझ में आ जाए कौन सा वेरिएबल किस पर्पज से लिया गया है। और सर अब क्या रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, नो पैरामीटर ना सर? फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, ओके। विदाउट आर्गुमेंट। बस प्रिंट का है नहीं। अच्छा, ऊपर वाला केवल इवन को चेक करेगा। यस सर। ऊपर भी लिख लीजिए, आईओ स्ट्रीम को भी लिख सकते हैं आप, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन जो भी है आपका, अदर कोई यूज करेंगे तो। ओनली उतना ही लिख दीजिए बस, ठीक है। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन किसके लिए है वो आपको पता है। वर्ड सर एक टेबल का प्रोग्राम यहाँ पर बना देंगे, यानी इसमें आर्गुमेंट भी नहीं है और रिटर्न टाइप भी नहीं, ठीक है। यस सर। क्या आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर दीजिएगा इसमें। ओके सर। तब भी लेना ही पड़ेगा। इवन पे यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं। संडी तो मैं काम नहीं करूँगा। नंबर लोगे तब। नंबर को कांस्टेंट लोगे क्या? क्या सर? नंबर एंट्री नहीं करोगे? अच्छा हाँ यस सर, नंबर यहाँ लेना होगा। यूज कर लीजिएगा। ठीक है ना सर? देखिए यहाँ पर आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप दोनों है, इसलिए फंक्शन का आउटकम जो है यहाँ मेन में यूज हो रहा है और यहाँ से वैल्यू भी पैरामीटर भी जा रहा है। इवन और ऑड को चेक कर रहे हैं।
इससे बाहर जाएगा तो फिर सर यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लेंगे क्योंकि दूसरा वाला में हमारा रिटर्न टाइप कुछ रिटर्न टाइप है विदाउट पैरामीटर है सर। ये निकाल रहे हैं। रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू है ना। ये दूसरा वाला में सर जो पहला तो फैक्टोरियल वाला में सर रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर है, दूसरा वाला में सर नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर है इवन वाला जिसमें हम इवन चेक कर रहे हैं, और जो ऑड वाला है सर उसमें नो रिटर्न टाइप विथ नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप विथ नो रिटर्न पैरामीटर। टाइप है। यस सर यहाँ पे सर पैरामीटर नहीं है, इंट ऑड है। यस सर। अच्छा, तो इसीलिए आपका अब उस फंक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, यस सर। नंबर देना पड़ेगा। सर इसको सोच रहे हैं कुछ और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम होगा। या सर फ्लैग का भी यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे ऑड इवन चेक करने के लिए। स्क्वायर ले लो ना, स्क्वायर ले लो। यस सर स्क्वायर ले लेते हैं। सीधे रिजल्ट इज ठीक है। फंक्शन का नाम बदल दीजिए। देख, डिफॉल्ट नहीं दियो ना। इस 4 5 के बाद कुछ डालेगा तो वहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर डिफॉल्ट भी फोल्ड कर लेंगे। इसमें लूप क्यों नहीं ले रहे आप? एक बार में एक ही चेक होगा। ठीक है, ठीक है। हमारा बैटरी खत्म है क्या जी? इसको कनेक्ट करिए। हमको बोल रहे हैं सर। हमको हम अपना चेक कर रहे हैं कि मेरा बैटरी क्यों
मैं कंट्रोल अगर वहां से कर्सर यहाँ आएगा, मत ले रहा है, लेगा कैसे जी? वाइल वन ले रहे हो तो इसमें तो इनफाइनाइट में चला जाएगा, इसके लिए एग्जिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एक केस डालना पड़ेगा एग्जिट के लिए, नहीं तो फिर केस 5 में एग्जिट फंक्शन कॉल कर लीजिए stdlib.h। एंड तुम होम और एंड को यूज किया करो। सब जो प्रोग्राम लिख रहे हैं इसको शेयर, आप पीडीएफ बना के बोले थे कि पीडीएफ इसको शेयर करने के लिए। सर आज कर देंगे सर। तो करते तो करके दे देते, टाइप कर रहे हैं, यू हैव गुड स्पीड इन टाइपिंग। इवन ऑड में, अच्छा ठीक है, इसीलिए ऑड हटा दिए, इवन ऑड दोनों चेक नहीं रहे थे। और एक टेबल के लिए नम का कहाँ नम, अच्छा ठीक है, एन का क्या यूज हुआ वहां पर ऊपर में? अच्छा नंबर, नम सर एन को यहाँ पे भेजे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, फैक्ट वाले फंक्शन के लिए यहाँ पे सर। एन का यूज तो जहाँ एन का यूज करा वो इसमें भी, एन को भी इसमें भी यूज कर सकते थे। यस सर, तो एनी सर इसमें नम यूज किया ना, क्योंकि सर अच्छा सेम ही नंबर के लिए आप बोल रहे हैं दोनों चीज फाइंड आउट कर ले, हम्म, तो सर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अभी। अगर करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? नहीं सर दिक्कत नहीं होगा, फिर ये वाला नहीं हो तो जाएगा ही सर, ये वाला एन तो इसके लिए भी एक्सेसिबल होगा ही। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कर लिया। यहाँ देखना है कि तुम्हारा कर्सर वहां से रिटर्न होता है कि नहीं, तुम वाइल लूप ले रहे हो डिफरेंट। एक बार कर्सर अगर आपका फंक्शंस में के बाद रिटर्न नहीं होगा तो फिर टेबल में कोई वैल्यू नहीं पास किया हुआ है। सर सब के लिए नहीं ना करेंगे, इसमें हम लोग ये नॉन पैरामीटराइज्ड विथ नो ठीक रिटर्न ठीक टाइप। ठीक ठीक, हाँ। अच्छा नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू है, ठीक है। यस सर। सबको वैल्यू जितना ले रहे हैं ना, सबको ग्लोबल यूज कर लेना चाहिए था, एक्सटर्न वेरिएबल। वहां आप एक्स भी लिख सकते हैं, प्रोसेसिंग में एस्टिक्स यूज करिएगा। यस सर। ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्यों ले रहे हैं?
न्यू लाइन लीजिए, उसमें हैंडल करिए, लास्ट में हैंडल कर दो। टेबल का हो गया सर, ये स्क्वायर का हो गया, इवन वाला हो गया, ये फैक्ट वाला हो गया। सर ये जो स्क्वायर वाला फंक्शन है, हाँ तो इस स्क्वायर वाले फंक्शन में तो हम इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं पहले, तो जब इसको हम कॉल करेंगे तो ये वाला लाइन तो पहले एग्जीक्यूट होगा ना सर, ये तीनों लाइन, हाँ, और उसके बाद ये रिटर्न करेगा ना सर। फंक्शन कॉल होगा तो एक बार जाएगा कर्सर में। बाकी सब तो ठीक ही है सर। फाइल को भी दिया, देखिए रन करके। सर यहाँ ऑप्शन भी दे दें क्या कि प्रिंट प्रेस दिस फॉर दिस। ना ना, वो छोड़िए, वो तो मेनू आप बनाते रहिएगा। यस सर। वो तो आप अपने हिसाब से बनाते रहिए। क्या हुआ जी? लो आता है सर, नहीं पता क्या है। एरर फ्री है, तो एरर तो नहीं है कोई। एक मिनट, फाइल चेंज करके देखा जाए सर। हम्म, नया न्यू लाइन नहीं दिया हूँ, कोई बात नहीं। फिर से सर ये उसी के लिए मांग रहा है, ब्रेक तो यूज किए हैं यहाँ पे। इसलिए मांग रहा है कि आपका कर्सर जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। जब फंक्शन कॉल हुआ ना, यस सर। कर्सर आपका जो है वो आउटसाइड ऑफ फंक्शन आ गया। ऊपर कीजिए, ऊपर न्यू लाइन, वहां पहले एक तो यूज कीजिए, तो पहले इंटर नंबर जहाँ किए हैं इसके शुरू में करिए, शुरू में। एक मिनट, वाइल वन स्विच सी एच, चॉइस किया, एक नंबर किए, और फिर नीचे देखें। एक बार मैं यहाँ से फंक्शन, इसीलिए बोल रहे थे स्विच यूज करिएगा, तो वहां पर दिक्कत क्या हो सकता है, स्विच का क्या लिमिटेशंस है, इसको भी आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कर्सर एक बार जो है आउट हो रहा है। कर्सर आउट हो रहा है मतलब कि वहां इंटर योर चॉइस पूछना चाहिए था, ठीक है ना। यस, यहाँ पे पूछना चाहिए इसको। हाँ, लेकिन और आप इसको भी नीचे ले जाए क्या? इंटर योर चॉइस को डालिए वाइल लूप के अंदर। यस सर, इसको भी ले लेना पड़ेगा अंदर, तब ये बार बार पूछेगा। ठीक है, अब आप रन करिए। फिर से कंपाइल कराना पड़ेगा ना सर इसको, क्योंकि तो हो चेंजेस तो। जाता है, लेकिन एक बार कंपाइल कर लीजिए, ज्यादा सही है। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करिए। क्या है? कौन सा लाइन में एरर है? सर लाइन नहीं शो कर रहा है। आईडी, आईडी क्या है? आईडी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस। यहाँ तो ठीक स्विच है। बंद हुआ, फिर वाइल बंद हुआ, फिर रिटर्न, उसके बाद मेन बंद हुआ, ठीक है। इंडेंटेशन का कोई इशू नहीं ना सर यहाँ पे? नहीं नहीं, वो सब कोई इशू नहीं है इसमें।
y1 ऊपर जाइए तो ऊपर ठीक है। एक बार सेव करिए तो इसको सेव कीजिए, कंट्रोल एस, यस सर कर दिए सर। देन रन इट, कंपाइल एंड रन। इसको पूरा प्रोग्राम को सेव कीजिए, तो सेव करके दूसरा फाइल में कॉपी कीजिए। एक आप रन कर रहे थे ना, उसको बंद करिए ना पहले, वो खुला हुआ है। नाउ एग्जीक्यूट। यस सर अभी काम कर रहा है। दो इंस्ट्रक्शन नहीं ले पा रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। 120 दिया सर, फिर चॉइस पूछा हमसे। चॉइस में न्यू लाइन नहीं दिया, नीचे में दिए हो, ठीक है चलो दूसरा डालो। सर इंटर द नंबर विच यू वांट टू चेक, मतलब इवन ऑड वाला है ये सर, तो 4 देते हैं। फिर कहा नंबर इज इवन, हाँ। फिर 3 वाले नंबर पे कॉल करते हैं सर। स्क्वायर जिसमें निकालना था तो 9 देते हैं। सर स्क्वायर इज 81, न्यू लाइन का हम उसको मॉडिफाई करके आपको भेज देंगे सर। तो स्क्वायर इज 81 यहाँ पे आ रहा है सर। और नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे लास्ट वाला प्रोग्राम टेबल का था, तो सर अगर 5 देते हैं तो 5 का टेबल नहीं प्रिंट किया। ओ अच्छा, 5 जो चॉइस था ना सर वो एग्जिट के लिए था। 4 होगा यहाँ पे, फिर से एक बार रन करा देते हैं और नया लाइन इस बार ले लेते हैं। बार बार क्लोज नहीं किया करो, इंटर करके बंद करो। ओके सर। इंटर करके तो आदत रहेगा, नहीं तो हमेशा उसको मिनिमाइज करिएगा, यस सर। फिर दिक्कत होगी। सर कभी कभी मिनिमाइज करने पे भी एरर देने लगता है। हाँ, तो मिनिमाइज करने पर आप डबल फिर कंपाइल कीजिएगा तो एरर आएगा ही। अभी जैसे जो एरर आ रहा था वो ड्यू टू एक आपका आउटपुट विंडो ओपन था। चॉइस 1 5, फिर चॉइस में नहीं दिया। यस सर, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। बंद कीजिए तो पहले, ऊपर में उसको सही कीजिए पहले, क्लोज कर दो क्लोज बटन से। इसी से सर। हाँ हाँ, और ऊपर में वो इंटर चॉइस सही कीजिए। अब कंपाइल एंड रन कीजिए। फिर वही 4 कर दिया। 3 के बाद तुम ऑड काहे चल जाओ, 4 ना करना चाहिए। ठीक है, ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 में एक बार चेक कर लीजिए, टेबल तो प्रिंट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सर 5 प्रेस करना है। 5 नहीं करते, 6 करते तो डिफॉल्ट वाला भी प्रिंट हो जाता। ठीक है, Yes, sir. फिर एंटर करो, एंटर करो। सर आप नहीं ना रन करवाना सर। नॉट मिनिमाइज, यूज मिनिमाइज इन आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो को बार बार मिनिमाइज और यूज नहीं कीजिए। क्लोज बटन या प्रेस इंटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब। ओके Now सर। in this particular program, entire function will be implemented। तो 4 तरीका जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम एक लिखा गया, यू कैन यूज एनी ऑफ द 4, कोई भी 4 में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। तो नाउ शेयर, उसको शेयर कर दीजिएगा। यस सर, हम आज कर देंगे सर, दोनों कर देंगे वो वाला भी।
तो दैट इज द पर्टिकुलर सेक्शन। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम है। तो एग्जाम्पल प्रोग्राम इंडिविजुअली था, अभी जो प्रोग्राम देखे उसमें एक ही साथ आपका लूप यूज हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये जो जीरो ऑर्डर जो फंक्शन है, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, इसमें हम फंक्शन को जितनी बार बाय नेम कॉल करना चाहें कर सकते हैं मेन प्रोग्राम में। अब कोई ये कहता है कि ये फंक्शन लिखने से क्या बेनिफिट हुआ अगर इंटायर कोड को ही हम फंक्शन में लिख दिए, तो इसका क्या कोई बेनिफिट है, कोई बताएंगे? किसका सर? ये जो नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू जो फंक्शन लिखा गया, यस सर। तो क्या बेनिफिट है? सर इस बेनिफिट इसका यही है सर कि हम लोग हर सेपरेट टास्क के लिए एक मॉड्यूल लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम पैरामीटर पास ही करें इसमें, जैसे कि इसका नेचर भी है सर। जैसे ज्यादातर इसका इस्तेमाल हम लोग लिंक लिस्ट के केस में कर रहे थे, या डेटा स्ट्रक्चर्स में एक सेपरेट जैसे पुश के लिए बनाना रहता था तो हम लोग उसके लिए सेपरेटली बना लेते थे, पॉप इस तरीके से सर। देखिए चारों प्रोविजन दिया हुआ है। देखिए यहाँ इसका भी एडवांटेज है। इसका एडवांटेज कोई बोलेगा अगर कि फंक्शन में कंप्लीट पैरामीटर जब हम मेन में भी लिख ही रहे थे और इस फंक्शन में लिख रहे, दोनों में अंतर ये है कि आपका ये जो फंक्शन लिखा गया है ये वन टाइम लिखा गया है और सेवरल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी प्रोसीजर्स को जो फंक्शन में लिखा गया है अगर मेन में लिखते तो एक ही काम को करने के लिए वो प्रोसीजर्स को बार बार लिखना पड़ता है। So to avoid redundancy or repetition of the same set of instruction in the program, we can use this module also. इस मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हैं जहां पर इंटायर प्रोसीजर्स को फंक्शन का पार्ट बना देंगे और फंक्शन को बाय नेम कॉल कर लेंगे विदाउट एनी आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। आप डायरेक्टली फंक्शन में, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा, कर्सर डायरेक्टली ट्रांसफर टू द फंक्शन डिफिनीशन एरिया एंड एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड थ्रू दैट फंक्शन ओनली। तो कर्सर डायरेक्टली फंक्शन एरिया में जाएगा और वहां से सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके, तो जितनी बार ये कॉल करेंगे उतनी बार कर्सर ट्रांसफरिंग होगा। तो दैट इज द एडवांटेज पार्ट ऑफ दिस फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू आल्सो। तो यू कैन इजीली इम्प्लीमेंट फंक्शन by using this way, that is no argument no return value। अब नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू के केस में भी देखिए यहाँ पर नो आर्गुमेंट है और रिटर्न वैल्यू है। तो जस्ट सी कि जब भी नो आर्गुमेंट होगा तो मेन में कोई भी एंट्री नहीं होगा, मेन में केवल फंक्शन कॉल होगा। तो नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ देखिए वे ऑफ राइटिंग चेंज हो गया। यहाँ पर मेन में जब नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू था तो यहाँ पर हम लोग केवल बाय नेम फंक्शन को कॉल कर लिए, लेकिन यहाँ फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ रिजल्ट स्टोर नहीं हुआ है। यहाँ केवल फंक्शन कॉल हुआ, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द यूजर डिफिनीशन एरिया, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफिनीशन एरिया में आपका रिजल्ट स्टोर हो रहा है। बट इन केस ऑफ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, जस्ट सी द वे ऑफ राइटिंग। आर्गुमेंट आपका जो है वो सब कुछ लिया जा रहा है फंक्शन के अंदर ही, लेकिन फाइनली वहां से वैल्यू रिटर्न हो जा रहा है। Once the value is returned from the function, then to store that value there is need a statement in the main function। तो उसी सम फंक्शन को यहाँ लिखने का तरीका बदल गया। अब यहाँ सम को कॉल कर रहे हैं जो फंक्शन को, उसको स्टोर करने के लिए मेन फंक्शन में ही हम स्टेटमेंट एडहेयर कर रहे हैं, एडअप कर रहे हैं। तो दोनों तरीका समझ में आ रहा होगा आपको कि फंक्शन में आप इसको किसी स्टेटमेंट के थ्रू कॉल करके स्टोर कर रहे हैं, मेन में ही रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। और पहले वाले में फंक्शन कॉल तो हो रहा है लेकिन रिजल्ट प्रिंटिंग एरिया कहाँ है, रिजल्ट प्रिंटिंग एरिया यहाँ पर फंक्शन में है। यानी कि सम इक्वल टू m प्लस n, हम m प्लस n जो इंटर कर रहे हैं सम फंक्शन में, उसी में रिजल्ट भी स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब हम फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू बट रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा मेन में डिस्प्ले हो रहा है, फंक्शन भी कॉल हो रहा है और साथ में वो फंक्शन वैल्यू जो रिटर्न होके आ रहा है उसको डिस्प्ले भी करा रहे हैं। तो मेन में ही दोनों काम हो रहा है। तीसरा जो है आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट है, इसका मतलब देखिए आपका जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है इसमें पैरामीटर लिया हुआ है, दैट इज द फॉर्मल वन। अब ये पैरामीटर का जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ जो फंक्शन है इसमें आर्गुमेंट आपको देना है, रिटर्न कुछ नहीं हो रहा है इसलिए रिजल्ट यहाँ स्टोर हो रहा है, रिजल्ट इसी में प्रिंट हो रहा है। लेकिन चूंकि आर्गुमेंट देना है तो मेन में आप इनपुट लेते हैं m और n। अब यहाँ अगेन हम लोग डिस्कस किए थे कि ए बी और एम एन जो है डिफरेंटली एक्ट करेगा। जब भी आर्गुमेंट होगा तो एक्चुअल और फॉर्मल का कॉन्सेप्ट आएगा। एक्चुअल आर्गुमेंट इज ऑलवेज अलाइंड इन द मेन फंक्शन
and formal argument is the part of the function definition, user defined function definition area. तो in this manner यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन प्रिंट यहाँ हो रहा है। क्यों प्रिंट यहाँ हो रहा है? क्योंकि यहाँ रिटर्न वैल्यू नहीं है, यानी फंक्शन से फिर कर्सर को बाहर निकलने का कोई स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन को बाहर निकलने का एक्सप्रेशन आपने स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। एंड फाइनली जो थर्ड वन था, फोर्थ आर्गुमेंट ऑन रिटर्न वैल्यू, इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन होगा उसमें केवल रिटर्निंग स्टेटमेंट होगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कंप्लीटेड इन द मेन फंक्शन। दैट मीन्स एक्चुअल आर्गुमेंट के लिए वैल्यू एंट्री और एक्चुअल आर्गुमेंट का पासिंग, ये सारा कुछ आपका यही होगा, लेकिन रिटर्न हो रहा है इसलिए स्टोर्ड भी आपका जो है मेन में ही होगा। तो दैट इज द डिस्क्रिप्शन एंड द सेम ऑल इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विनायक इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ऑड, इवन और फैक्टोरियल और टेबल को प्रिंट करने के लिए चारों जो है फंक्शंस को यूज किया गया। Now, as like a calling of function we discussed in C language or any programming language, so in C++ also one add up section, यहाँ पर एक चीज ऐड हो गया है, यानी कि कॉलिंग ऑफ फंक्शन में हम लोग C में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस देखे थे, लेकिन ये कॉल बाय रेफरेंस अब एक बार कॉल बाय एड्रेस से भी आपका हो गया, यूज हो रहा है। तो इसके लिए प्रोग्राम तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, आपको उसका आइडिया भी है कैसे यूज होता है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे थे सी में। कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि यहाँ रेफरेंस वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज हो रहा है, एलियास के रूप में रेफरेंस वेरिएबल यूज होता है जो सी में नहीं था। तो कॉल बाय रेफरेंस को यहाँ दो सेक्शन में बांट दिया गया, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस इज द न्यू टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन C++। कॉल बाय एड्रेस, एक्चुअली कॉल बाय रेफरेंस जो सी में था वही कॉल बाय एड्रेस नेम या कॉल बाय पॉइंटर भी आप बोल सकते हैं, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय पॉइंटर। तो यहाँ पर ये तीन तरीका से हम लोग कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर देयर इज एन आर्गुमेंट पास टू द फंक्शन, इसलिए ये पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, कॉलिंग ऑफ फंक्शंस का जरूरत कब होता है? जब हमारा आर्गुमेंट पास होता है फंक्शन में। अगर आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो कॉलिंग आपका बाय वैल्यू, एड्रेस या रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है, आपका कॉलिंग डायरेक्टली फंक्शन नेम से होता है। तो व्हेनेवर यू कॉल द पर्टिकुलर फंक्शन थ्रू इट्स वेरिएबल, थ्रू इट्स आर्गुमेंट पैरामीटर इन डिफरेंट मैनर, बाय एड्रेस, बाय वेरिएबल, बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू, तो it is possible only whenever there is an argument passed to the function. So that is mentioning, that is very important whenever we are calling a function. Whenever there is an argument passed to the function, then only we can use the calling of function on the basis of actual and formal argument. Actual argument contains the actual value, that is the features. So actual value, that means तो वहाँ पर value आपको लेना होगा input, और it exists within main function. And the formal argument, it does not contain, it does not have any actual value, and it wait for the actual one. It does not have contain actual value and wait for the actual one, यानी actual value का ये wait करता है। अब ये value के फॉर्म में आपको इसको मिल रहा है, एड्रेस के फॉर्म में मिल रहा है या रेफरेंस के बेसिस पर मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा कि आपका पैरामीटर कैसे यूज हो रहा है। एंड इट एग्जिस्ट विद इन द डिफिनेशन पार्ट ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एक्चुअल और फॉर्मल क्या है। नाउ देयर आर थ्री वे टू कॉल द फंक्शन व्हेनेवर देयर इज एन आर्गुमेंट टू द फंक्शन इन C++। तो कॉल बाय वैल्यू, और यू कैन से पास बाय वैल्यू, बिकॉज इन सम ऑफ द बुक कॉल बाय वैल्यू की जगह पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस, पास बाय रेफरेंस भी मेंशन किया हुआ है। तो बोथ आर सेम, कॉल बाय वैल्यू बोलिए या पास बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस एंड पास बाय एड्रेस। Now this is the mechanism, main mechanism is written, it is already, हम इसको हम लोग already other language में डिस्कस किए थे कि जो calling of function call by value है उसमें actual argument भी data variable होता है और formal argument भी data variable होता है, because you already have a concept that कि अगर हम कोई भी यूज कर रहे हैं वेरिएबल, तो या तो वेरिएबल आपका डेटा वेरिएबल होता है या आपका जो वेरिएबल है वो यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो डेटा वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में बेसिक डिफरेंस आपको पता है
कि डेटा वेरिएबल इज द कंटेनर ऑफ वैल्यू and it keeps used to keep the value, and pointer variable is the container of address. So address of which? तो address of data variable. ठीक है, तो यहाँ पर उसी टर्मिनोलॉजी को के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया हुआ है. इन कॉल बाय वैल्यू your actual argument is also data variable and formal is also data variable, and in call by reference your actual argument is data variable but formal argument is reference to the data variable. And Yes, ampersand is preceded with the data variable, whatever data variable naming convention you are using in that formal argument in the function definition. तो call by reference में data variable आपका actual argument होगा, formal argument में ampersand लेंगे. ये ध्यान रखना है जब भी आप यूज कर रहे हैं रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस. तो हम लोग हाँ सर कॉल बाय रेफरेंस का अगर बात करें तो वो भी एक तरह का हमारा वेरिएबल का एलियास बन जाता है. जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है वो फॉर्मल पैरामीटर उसका एलियास बन जाता है. और जब हम कॉल बाय इसकी पॉइंटर की बात करते हैं सर, जो हम लोग सी में करते थे, तो वहां हम एड्रेस पास करते थे और पॉइंटर का इस्तेमाल करते थे. तो सर ऑलमोस्ट तो टास्क तो सिमिलर ही परफॉर्म हो रहा है. एक एड्रेस पे काम कर रहा है, ये एक डिफरेंट रेफरेंस मतलब काम कर रहा है. तो डिफरेंस क्या है सर दोनों में? Difference, it looks like a pointer but it is not a pointer because you are not giving address, you are giving the name of the variable, you are assigning the variable. So in this case you are giving the address of the data variable, but in case of reference we are giving the variable itself. Variable is assigned to the reference. Here the address of the variable is assigned to the particular Pointer argument. So because whenever we are passing the address of data variable, so address of data variable cannot be placed in any data variable. So that is why there is a need of pointer variable. That's why यहाँ पर हम लोग pointer variable ले रहे हैं. यहाँ पर ये लग रहा है आपको pointer के जैसा, but ये है नहीं pointer. ठीक है ना? It looks like a pointer because the working nature आपका जो है वो similarities है दोनों में. Pointer में भी वही काम हो रहा है because whatever आपका changing occur on the reference variable that will affect the data variable which is aligned to the particular reference variable. In the same case, like whenever we are passing address of data variable and that address is assigned to the pointer variable, then whatever operations or whatever changing occur on the pointer variable that will affect the actual data variable also, because we are using assigning the address of that data variable to the pointer variable. But there is difference between these two terminology. ठीक है ना? दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस आपको इस एक्चुअल और फॉर्मल के बेसिस पर भी डिफरेंस है. एक्चुअल आर्गुमेंट में हम कॉल बाय रेफरेंस में हमेशा वेरिएबल को पास करते हैं, तो वेरिएबल को हम कभी भी पॉइंटर में नहीं रख सकते हैं. ठीक है ना? किसी भी वेरिएबल को हम पॉइंटर में नहीं रख सकते हैं, और पॉइंटर हमेशा किसी वेरिएबल के एड्रेस को ही आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, बिकॉज पॉइंटर वेरिएबल इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस. पॉइंटर वेरिएबल का यूज ही उसी पर्पस के लिए किया जाता है. डायनेमिकली एलोकेशंस अगर आपको करना है तो पॉइंटर के थ्रू हम डायनेमिकली एलोकेट करते हैं. तो दैट्स व्हाई एक डिफरेंस तो यहाँ सामने दिख रहा है कि एक्चुअल आर्गुमेंट में पासिंग पैरामीटर का आपका नेचर क्या है. ठीक है ना? एक में आप डेटा वेरिएबल को ही भेज रहे हैं और एक में एड्रेस उसका भेज रहे हैं. तो जहां पर डेटा वेरिएबल को भेज रहे हैं वहां पर रेफरेंस वेरिएबल में वो असाइंड हो रहा है, यानी उसका एक एलियास सेट हो रहा है. ठीक है? यहाँ पर आपका एड्रेस ही आपका असाइंड हो जा रहा है पॉइंटर वेरिएबल में. तो दोनों सिमिलरिटी है, दोनों दिख रहा है एक सेम, लेकिन एक में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, एक में रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द C++. अर्लियर इट इज नॉट यूज्ड इन द C बिकॉज डेनिस रिची ने दोनों को कॉमन कॉन्सेप्ट समझा. ठीक है ना? तो जार्न स्ट्रूस्ट्रप ने थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज किया, उनको भी R&D करना था. ठीक है? तो रिसर्च का मतलब ही होता है रिसर्च. तो व्हाटएवर सर्च गोइंग ऑन इन द प्रीवियस लैंग्वेजेस, तो उसमें रिसर्च करके ये चीज नया चीज डाल दिया गया एज लाइक अ K-map एंड यू से दैट द लॉजिकल गेट्स. ठीक है ना? K-map और लॉजिकल गेट में डिफरेंसेस देखिएगा तो बुलियन अलजेब्रा और K-map जो लॉ है ये उसमें देखिए, तो लॉजिक गेट्स में जो कॉम्बिनेशंस लेते हैं उससे अलग बनाने के लिए आपका यहाँ कॉम्बिनेशंस में थर्ड फोर्थ को पैरामीटर को कर्नल ने चेंज कर दिया. क्योंकि उनका रिसर्च डिफरेंट लगना चाहिए. ठीक है ना? तो डिफरेंट यहाँ पर है भी,
ये एक अगर एनालाइजर को एडप्ट किया गया है तो यहाँ है डिफरेंस, क्योंकि एक में वेरिएबल पास हो रहा है, एक में एड्रेस और वेरिएबल पास हो रहा है। एड्रेस जब भी पास होगा तो उसके लिए हमको पॉइंटर का जरूरत होगा। तो दैट्स वाई यहाँ मेंशन है डेटा वेरिएबल होल्ड्स वैल्यू, पॉइंटर वेरिएबल होल्ड्स एड्रेस, रेफरेंस वेरिएबल अल्टरनेट नेम फॉर द डेटा वेरिएबल। यू कैन से यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल एक तरह से कह सकते हैं अल्टरनेट नेम ऑफ डेटा वेरिएबल। तो चूंकि नाम यहाँ पर क्या है, नाम पर काम हो रहा है, यहाँ पर एड्रेस पर काम हो रहा है, यहाँ पर नाम पर काम हो रहा है। यानी कि अगर विनायक का 10 नाम कर दिया जाए तो एक्चुअल आपका परफॉर्मर या लूजर जो भी होगा वो एक्चुअल जो ऑफिशियल नेम होगा उसी से नोटिफाई होगा, ठीक है ना। लेकिन रिफ्लेक्ट वो 10 नाम होगा, यानी जो जिस नाम से पुकारते हैं वो सब लोग बोलेंगे कि इसका जो है परफॉर्मेंस गोल्ड मेडलिस्ट वाला हो गया, नहीं तो लूज कर गया तो लूजर हो गया, विप्रो में सेलेक्ट हो गया तो गेनर हो गया, नहीं सिलेक्ट हुआ तो लूजर हो गया। तो ये अलग अलग जो आपका परसेप्शंस आपके लिए होगा, ये आप ही के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो आपका एक ऑफिशियल नेम होगा, उस ऑफिशियल नेम पर ये सारे जो है टैग होंगे। तो you just go through this one. I think that once you go through this one, it is very much clear to you what is the difference between all the three. Call by value और call by address तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, सी लैंग्वेज में पढ़े हैं। कॉल बाय रेफरेंस भी हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू यूज किए थे जिसमें तीनों चीज देखे थे, आपके क्लास में किए थे। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ही इस ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, इसी में अगर ए बी सी में से किसी एक को पॉइंटर कर दीजिए, ठीक है, तो पॉइंटर के हिसाब से यहाँ चेंज कर दीजिए। तो ये एक ही प्रोग्राम के अंदर आप सबको यूज कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। सर किसी और क्लास में भी C++ पढ़ा रहे हैं, किसी और क्लास में भी C++ पढ़ा रहे हैं क्या सर? C++ तो गोलैंग में भी C++ हो ही जाता है। यस ठीक है, C++ नहीं पढ़ा रहे हैं, बट सी का जहाँ टर्मिनोलॉजी है, जहाँ पर रेफरेंस है, वहां पर उसको यूज करते हैं। तो आपके क्लास में ही पढ़ाए होंगे या उसके पहले वाले सेशन में AKU में पढ़ाए थे, तो उसमें कहीं डिस्कस किया गया होगा।